الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال کن بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسہ یم زن مختلف مسائل تیمم تمن ہز وضاحت سپدے تہ برونٹ کنت. البتہ تیممس متعلق اخ ز مسائل بی اور بی زن آئے مبارکہ اس ام برو پڑ تات مز بی اخ مسئلہ یمچ زن بہ تہ برونٹ کن وضاحت چھس ویسن. اس کے بعد ہم یہ جو آگے آنے والی آیت ہے اس کا درس شروع کریں گے. بہرحال بہ کر صرف لفظی ترجم تمہ آئے مبارکک یم سۭتۍ زن یُس زن اخ اشکال چھ سہ گژھِ دوٗر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ اے ایمان والو آپ نماز کے قریب اس حالت میں نہ جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں. یعنی اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. بہرحال امچ تفصیل آئی حتی تعلموا ما تقولون جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. یعنی اکس انسان گژھِ پورٕ پتہ آسن کہ سہ کیا چھ پڑھان. اس میں نے یہ مسئلہ کہا تھا کہ ایک تو نشے کی حالت میں جب انسان بالکل دھت ہو نشے میں اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہو تات میں بہرحال نماز پڑھیں یا نماز خاطر کھڑا گھن جائز کی. یہ تو قرآنی حکم ہے. ات مز میں ذیلی مسئلہ اخ یہ کہ اگر نماز ہند اصلی یُس زن مقصد یا نماز ہند زن اصلی ثمرات وہ تب حاصل ہوں گے جب ایک انسان اس عبارت کو یا ان کلمات کو سمجھے جو وہ دہرا رہا ہے. اس لیے سارے کھت بہترین نماز صورت سا اور خشوع اور خضوع حاصل کرنے سا صورت کہ انسان قرآن پاک کا ترجمہ سیکھے امیک سمجھے سو ترجم تاکہ جب وہ کسی آیت کا یا کسی صورت کی تلاوت کرتا ہے اسے سمجھ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہرحال توے قرآن پاکس مز وچھن صحابہ صاحبن متعلق آو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ جب یہ لوگ سنتے ہیں اس کلام کو جو کہ آپ پر نازل ہوا ہے یعنی مراد اس سے کون ہے صحابہ تمہ سات کیا گژھن تمن. بہرحال ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ اشمو سے کیا گژھن جاری. اب کبھی ہماری یہ حالت ہو گئی نہ اس گئی زہایتی یہ حالت کیوں کیونکہ ہم نے کبھی اس قرآن کی چاشنی کو قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس لیے آیت کس تفسیرس میں علماء لکھن کہ اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ اخ انسان گژھِ بہرحال حتمی کوشش کرن کہ وہ قرآن کے مطالب کو سمجھے قرآن کے مفاہیم کو سمجھے تاکہ اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جائے. اور یس اصلی مقصد قرآن پاک نازل گھنک بہرحال وہ ہے تدبر وہ ہے تفکر اور اسے ہدایت حاصل کرنا. وہ تب ہی حاصل ہوگا جب قرآن کے ان آیات پر تدبر اور تفکر کیا جائے. یہ اخ مسئلہ یہ زن اس میں نکلتا ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ یہ زن کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. اچھا دوسری بات
ये कहा गया वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन, हाँ जब आप जनाबत की हालत में हो उस वक्त भी नमाज के करीब नहीं जा सकते हैं जब तक कि गुस्ल न करे इंसान, जब तक कि पाक व साफ ना हो। इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तक, हाँ अगर राहगुजर के तौर पर वो मस्जिद को इस्तेमाल करे और कोई सूरत ना हो इस राहगुजर से बचने की, तो उस वक्त भी इजाजत है कि बहरहाल जनाबत की हालत में ही वो मस्जिद से जा सकता है, मगर वहां कयाम की नीयत से या वहां बैठने या इबादत की नीयत से बहरहाल उसको इजाजत नहीं है। ये भी हमने पढ़ा। वाइन कुंतुम मर्जा औ अला सफर, अब इसमें एक मसला है जो मैं बताना चाहता हूं। वाइन कुंतुम मर्जा औ अला सफरिन, अल्लाह ताला फरमान कि वाइन कुंतुम मर्जा, और अगर तुम मरीज हो, यानी युस शख्स मरीज है अब अला सफरिन, और अगर वो सफर में हो। सफर में इसलिए कहा गया क्योंकि पानी न मिलने की सूरत आमतौर पर कहां दरपेश होती है, सफर में ही। यकोर में औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, और या कोई आप में से कज़ाए हाजत से होकर आए, यानी तुमको कज़ाए हाजत यानी चाहे लकुट पेशाब करो या बोर्ड पेशाब करो, अब उसको किसकी जरूरत है, वुजू की यानी पाकी हासिल करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला फरमान मिनल औ लामस्तुमुन निसा, या आपने अपनी औरतों के साथ मस किया हो। यह मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अत मज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और बाकी जो तीन यमजन इमाम छ, उनमें से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर जो बाकी तीन इमाम हैं वो इस आयत से ये मतलब लेते हैं कि अगर तुम में से किसी ने अपनी औरत के साथ ये जन खलवत इख्तियार की हो, यानी अज़दवजी ताल्लुकात आसन कायम करमित, तब तो उस पर गुस्ल तो वाजिब हो गया या उसके ऊपर ये जन पाकी करना लाजिम हो गया। तो उलमा ने और अक्सर मुफस्सिरीन ने और इन तीन इमामों ने इससे यही मतलब लिया है कि अगर औरत का छूना मतलब है कि उनके साथ हम बिस्तरी इख्तियार करना। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस आयत का वही मतलब लिया है जो कि इसका लफ्जी तर्जमा है, यानी अगर तुम औरतों को छुओ, इससे मुराद वो लेते हैं कि खाली छूना जो है इससे भी इंसान पर वुजू लाजिम हो जाता है। तवै शाफी मसलकस मज मसल, अगर वुजू के बाद कोई मर्द चाहे दानिश्ता या नादानिश्ता किसी औरत को छुए, अगर वो उसकी अपनी ही बीवी क्यों ना हो, तो उस पर वुजू नए से करना लाजिम हो जाता है। तमिस पे नई पेवन वुजू, हता कि अगर वो अपनी बेटी को ही छुए, शाफी मसलकस मज कि उसे फिर दोबारा क्या करना पड़ता है, तमिस पेवन नई वुजू करन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस आयत से लफ्जी तर्जमा मुराद लिया है, मगर इमजन बाकी फुकहा उन्होंने इससे मुराद असल में कौन छूना मुराद लिया है, हम बिस्तरी करना या खलवत के ताल्लुकात इख्तियार करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर आपको पानी न मिले फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो उस वक्त कौन सी सूरत है, तयम्मुम की सूरत। बहरहाल तयम्मुम के मुख्तलिफ मसाइल वो मैंने आपको बयान किए, तयम्मुम कैसे होगा, कब करना होगा, कैसे तयम्मुम टूटता है, किन चीजों से तयम्मुम हो जाता है, किन से नहीं हो जाता सुगो। अलबत्ता एक ये जरा आख चीज है तो याद, एक और सूरत है जिसमें तयम्मुम करना जायज हो जाता है। ये में मुख्तलिफ सूरत बन के अगर 1.5 मील के ये 1.5 किलोमीटर या 1 मील के फासले पर पानी हो या पानी हो मगर उस पर कुदरत ना हो, बहरहाल तुम सारी वन में। इसमें एक और मसला भी आप याद रखेंगे, अगर कहीं पर जनाजा बिल्कुल तैयार हो, अगर कुंजे क्या आए जनाजा बिल्कुल तैयार, और ये आदमी जनाजे में शिरकत के लिए अगर वुजू करे तो वुजू के साथ ही जनाजा निकल जाएगा, तो इस शख्स के लिए भी उस वक्त तयम्मुम करना जायज है। इस शख्स खतर क्या तयम्मुम कर जायज, ताकि वो जल्दी जल्दी करके किस में शामिल हो सके, सह कि जनाजस में शामिल गसित। और ये भी आप याद रखिए, ज़िम्नन आयु मसला तो ये भी मैं समझा दूं, क्योंकि अक्सर ये मसला आपको आमतौर पर दरपेश आता है। कहाँ शख्स वुजू उसने किया है, अब तो तयम्मुम का मसला मैं नहीं बता रहा हूं, वुजू का वुजू कोरमुत, अब वो आ रहा था जनाजे में शरीक होने के लिए, मगर 1 या 2 तकबीरें छूट गई हैं। अच्छा आख या 2 तकबीर गमित, ठीक है, जनाजे में कस तकबीर आसन, पहले हम अल्लाह अकबर करते हैं, फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अल्लाह अकबर हाथ उठाए बगैर, फिर दरूद शरीफ, फिर अल्लाह अकबर हाथ उठाए बगैर, पद गो दुआ, पद गो भी अल्लाह अकबर, फिर सलाम फिरते हैं। अब कोई शख्स आ रहा था जनाजे में शिरकत के लिए, मैंने कहा अगर वुजू नहीं है, वुजू त्योता टाइम ही तो वो तयम्मुम कर सकता है, फिर वुजू इसमें जनाजे में शरीक हो सकता है। अच्छा कभी ऐसी भी हालत हो सकती है, बावुजू है, ये वुजू किया है मगर वहां से दौड़ता हुआ आया, मगर आख तकबीर या 2 तकबीर गमित, तो ये कैसे जनाजे को मुकम्मल करेगा, ये ज़िम्नन, क्योंकि अक्सर छी गसन। तो याद रखिए आप, जनाजे में सिर्फ 2 चीजें फर्ज हैं, जनाजे में सिर्फ 2 चीज फर्ज, एक है तकबीर वाजिब कहिए या फर्ज कहिए, जिनके बगैर जनाजा नहीं होगा, आख 4 तकबीर, यानी 4 तकबीर कौन सी, पहली, फिर हाथ उठाए बगैर जो तकबीर हम कहते हैं, और एक और है कयाम को खड़ा रोजन। यमिस इंसानस 4 चीज यन, यानी ये 4 तकबीर यन
और BS क्या कयाम, उसका जनाजा मतलब उसने जनाजा पा लिया। अब कोई शख्स है उसे एक तकबीर छूट गई या दो तकबीरें छूट गई, या कोई ऐसा शख्स है कि वो बिल्कुल ऐन सलाम के वक्त पहुंच गया, यानी सलाम तो फिर एमिस आया कहां तकबीर कोई, तो ये क्या काम करेगा, ये जल्दी जल्दी ये 4 तकबीरें कहेगा, यानी गोलकोन अल्लाहु अकबर कुछ नहीं पड़ेगा, बस बांधेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जितनी तकबीरें छूट गई हूं अल्लाहु अकबर, चाहे 3 4 8, फिर इसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेगा। इसका ये जनाजा बिल्कुल सही इथे पर्सन को जनाजा आओ, क्योंकि हैं मैं वो ना अगर सलाम फिरने के करीब हो, हाँ अगर एक साइड से सलाम हो गई अस्सलामु अलैकुम मीम तक ये पहुंच गया है, बहरहाल अब इसका जनाजा जमात के साथ तो नहीं आया, पता है क्या सेपरेट जनाज पढ़ के वो तो अलग बहस है, तथ गस क्या, मैं कहता हूं जमात के साथ जो जनाजा उसका पढ़ उसके लिए यह सूरत है कि वो तकबीरें जल्दी जल्दी से पढ़ेगा, बस तकबीरें पढ़ना और खड़ा रहना ये जनाजे के लिए काफी है, ये समझा जाएगा कि ये जनाजे में शरीक हो गया। अब आखिरी बात यहां पर कहा गया इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अफू यानी अफू करने वाला, माफ करने वाला, और गफूरा का मतलब क्या है, मगफिरत करने वाला है। अच्छा, इस आयत का पस मंजर आपको याद होगा, हजरत आयशा सिद्दीका का वो हार गुम गया था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुख्तलिफ किस्म के ताने लोगों ने देने शुरू किए थे, इसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए थे कहां, हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में, रसूल के हुजरे में, बहरहाल ताति तुम किल कशिर पर वन। तो अब यहां पर अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अफू करने वाला भी है और मगफिरत करने वाला भी है। ये खिताब उन सहाबा से भी है और हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी है, यानी फिर इसका मैं उमूमी माना भी बताऊंगा, यानी सहाबा से कहा जा रहा है कि आपने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ पहुंचाई, और अज़वाज मुतहरात में से सबसे जलील कदर ज़ौजे मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका, उनको भी तकलीफ पहुंचाई अपने इन तानो तशनी से, इसलिए अल्लाह ताला फरमान अब अल्लाह तो दरगुजर करने वाला है, अल्लाह तो माफ करने वाला है, इसलिए इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, अल्लाह ने आपकी इस गलती को उस पर माफी कर दी, क्योंकि अल्लाह है ही अफू और दरगुजर करने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी खिताब है, क्या खिताब है कि अबू बकर सिद्दीक अब बज़ाहिर उनकी बेटी ही तो थी, मगर वहां से तो ज़ौजे मोहतरमा वो किन की थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हिसाब से तो वो उनकी उम्महातुल मोमिनीन में से थी, उस हिसाब से तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो माँ भी थी उम्मत के लिहाज से जमाने। अब उनको तकलीफ हुई और यम साथ दाखिल, उसकी वजह से कौन बेदार हो गए थे, जनाब मोहम्मद, अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मामूली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती, अगरचे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उसका जरिया बने, इसकी वजह से भी रसूलुल्लाह को अगर कोई तकलीफ पहुंचे, हालांकि अबू बकर सिद्दीक का तो वो इंडिया नहीं था, मगर अल्लाह को रसूलुल्लाह की तकलीफ का इतना इस पर जलाल है, इतना खौफ है कि इस पर पकड़ भी कर सकता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए अबू बकर इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला भी है और गफूर भी है, यानी आपसे जो ये गलती सरजनिश इसकी जो हो गई, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माफ कर दिया। और अमूमी तौर पर इसका मतलब यह है कि जब आप किसी नापाकी की हालत में थे, अब आप पर लाजिम था कि आप पानी ढूंढते, आप इंतजाम करते किसका, पाकी का, मगर अल्लाह ने आपके लिए इतना अफू और इतना मगफिरत का मामला कर दिया कि आपको इस तकलीफ में नहीं डाला कि आप पानी तलाश करते फिरो या आप अपने आप को मशक्कत में डाल दो, इसलिए अल्लाह ने आपके लिए किसका इंतजाम किया, तयम्मुम का इंतजाम किया और आपके लिए इस मिट्टी को पाकी का सबब बनाया। इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, ए मोमिनो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला आप पर अफू करने वाला भी है और मगफिरत करने वाला भी है। एम पच्छा अल्लाह तबारक व तआला, अब यहां से जो मजमून शुरू हो रहा है अलम तरा इल्लल लज़ीना ऊतू नसीबा, अब यहां से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के दुश्मनों का तज़किरा शुरू किया है, यानी इस्लामिक दुश्मन इस दावत को जो मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे, अब उन लोगों का तज़किरा हो रहा है। और ये सूरह निसा हिस्पोर्ट, उसमें हमने अहकाम पढ़े, कभी वरासत के अहकाम, कभी हमने पढ़ा या वुजू के अहकाम पढ़े, कभी तयम्मुम के अहकाम पढ़े, कभी तलाक का भी थोड़ा सा ज़िमनी जिक्र आ गया। बहरहाल ये वाला हिस्सा कुरान पाक ये सूरह निसा का वो था अहकाम के मामले में। अब यहां से जो शुरू हो रहा है सूरह इस निसा का हिस्सा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला के जो दीन के दुश्मन है उनका तज़किरा है। और ये सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा, सूरह फातिहा में भी हमने पढ़ा और सूरह आल इमरान में भी हमने पढ़ा कि इस्लाम के सबसे अवलीन और सबसे बड़े दुश्मन रसूलुल्लाह के जमाने में कौन थे, यहूद।
सारे खुद बड़ दुश्मन कम यहूद। तो यहाँ से तज़किरा पहले शुरू हो रहा है यहूद का, यानी यम जन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानुन नबी जानन, हालांकि उनकी तालीमात को तो उन्होंने बुला दिया था और इतनी खबासत उनके दिलों में भरी हुई थी और बुग़्ज़ था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि वो समझते थे कि आखिरी नबी तो हम में से होना चाहिए, मगर अल्लाह की मर्जी अल्लाह की शान, आखिरी नबी तो बनु इस्माइल में से आ गए। तो इसलिए वो बुग़्ज़ रखते थे और हसद रखते थे रसूलुल्लाह से, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते थे इस दीन को बहरहाल दावत को रोकने के लिए, इसको पसपा करने के लिए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा किया है। बहरहाल वक्त को वारिया, मैं सिर्फ 2 आयात इनका सिर्फ लफ्जी तर्जुमा पढ़ूंगा क्योंकि इनमें ज्यादा तफसील नहीं है। अल्लाह ताला फरमान अलम तरा इल्लल लज़ीना ऊतू नसीबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा। हाँ, खिताब तो बज़ाहिर किन से है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मगर है ये खिताब आम, यानी हमसे भी कहा जा रहा है क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को ऊतू नसीबा जिन्हें कुछ हिस्सा दिया गया था, मिनल किताब, किस में से, किताब में से, क्योंकि ये तो अपने आप को अहली किताब समझते थे, ये पन्निस पानस समझन किताब, क्योंकि अहली किताब तो यही, इन्हीं के पास तो तौरात थी और नसारा में से उनके पास क्या थी, इंजील। तो यम जुग्रोह इस पांच बड़ मोतबर और बड़े फख्र के साथ कहते थे कि हम किताब वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अलम तरा इल्लल लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किताब में से कुछ हिस्सा दिया था, यानी मुराद इससे है यहूद, यानी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता की थी। यश्तरून ज़लाला, अच्छा उनका तरीका कार क्या है, यश्तरून ज़लाला वो गुमराही को खरीदते हैं, यश्तरून ज़लाला वो गुमराही खरीदते हैं, व युरीदून अन तज़िल्लु सबील, इतना ही नहीं कि वो तो सिर्फ अपने ही लिए गुमराही खरीदते हैं बल्कि चाहते हैं कि तुम भी इस राह से भटक जाओ, यानी ये चाहते हैं कि मुसलमान कत वत पे लगन अथ वत पे गसन। तो याद रखिए इस आयत में हमें सबक दिया जा रहा है कि यहूद जो है ये आपके अजली दुश्मन है, इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये मुसलमानों को राह हिदायत से भटका कर अब किस रास्ते पर चलाएं, गुमराही के रास्ते पर चलाएं और जलालत के रास्ते पर चलाएं। इसे पढ़ लो, अलम तरा इल्लल लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब यश्तरून ज़लाला, अच्छा इन्होंने गुमराही को खरीद लिया है। क्या मतलब इसका कि इन्होंने गुमराही को खरीद लिया है, यानी जानते बूझते इन्होंने किसका ये तरीका इख्तियार किया है, ज़लालत और गुमराही का रास्ता इख्तियार। वरना तो ये जानते थे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नबी बरहक है, क्योंकि उनकी किताबों में तो उसके बारे में पेशन गोइयां थी, निशानियां थी और बशारतें थी, और ये भी जानते थे कि इस्लाम ही बरहक मजहब है और ये हक युजन नबी ये नबी बरहक है। मगर इसके बावजूद इन्होंने जान बूझ कर किसको खरीद लिया, गुमराही को, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया यश्तरून ज़लाला, इन्होंने मान लीजिए इस गुमराही को कसदन खरीद लिया। व युरीदून अन तज़िल्लु सबील, और ये चाहते हैं कि आपको भी इसी राह पर भटका कर ले जाएं। अगर तो याद है सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था वलन तरजा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखे, और मुसलमानों को भी कहा जा रहा है कि याद रखे वलन तरजा अनकल यहूद, आपसे हरगिज यहूद राजी नहीं होंगे, वलन नसारा और न नसारा, कब तक, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक आप इनके इस तरीके की या उनकी मिल्लत की पैरवी नहीं, यानी यहूद बेहन तो तामत आराम सान किया तब तक ये आपसे राजी ही नहीं होंगे जब तक कि आप उनके तरीके की पैरवी और इत्तिबा नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक और बात भी कही जा रही है, अत क्या जोर से पतमिस आयत सत, जब ये इस तयम्मुम के यमजन मसाइल या यमजन ये हुक्म को नाजिल, तो उस वक्त भी यहूद ने एक प्रोपेगेंडा कर लिया, देखा ये कैसा मजहब है कि अब तो इन्होंने पाकी के और ये जो मसाइल हैं और ये बाकी मसाइल जो इसको भी अब इन्होंने गोल कर दिया। इस पर आज से वन वुश्ता आई नई मौलवी यमो को हुची बिदत हुची बिदत हुची बिदत, तो ऐसे ही इन्होंने भी प्रोपेगेंडा बनाया, देखा वुश्ता ये क्यों नबी है, इसने अब वजू और गुस्ल के तरीके उनको भी शॉर्टकट कर दिया, वंशित अपन करी इस पर तो गो ये पाक। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोमिनों को कहते हैं हाँ खबरदार कि आप इनके इस तरीके की इत्तिबा मत करना, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल से अपनी मेहरबानी से आपको बेहतरीन दीन दिया है, इसलिए आप उसी पर जमे रहिए। वरना इन यहूद की ये कोशिश ये है कि ये आपको इस आसान तरीके से भटका कर मुश्किलात में आपको डाल देंगे। अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु आलम बिआदाइकुम, हाँ अल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मनों को खूब जानता है। दुश्मन से मुराद कौन है, यमजन यहूद यमजन, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है।
वकफा बिल्लाहि वलिया, और अल्लाह ताला दोस्त होने के लिए काफी है। यानी इसका मतलब यह है कि मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने अल्लाह को अपना वली और अपना कारसाज और अपना दोस्त समझेंगे, ये यहूद आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह आपके लिए काफी है दोस्त। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ताला का मददगार होना ही काफी है, बस है। यानी आपको हमेशा मोमिन वन मानना इनडायरेक्टली कि आपका तकिया, आपका भरोसा किसकी जात पर होना चाहिए, बस अल्लाह की जात पर है। ये चाहे कितनी भी कोशिशें करें आपको बहकाने की, आपको गुमराह करने की, आपको रास्ते से भटकाने की, बहरहाल वकफा बिल्लाहि वलिया, बहरहाल दोस्त होने के लिए काफी अल्लाह ही है। वकफा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ही मददगार होने के लिए काफी है। यानी आपको हर हाल में अपना दोस्त किसको बनाना है, अल्लाह को, और मददगार तो कुछ बनाऊं अल्लाह तबारक व तआला। ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, अल्लाह किन का दोस्त है, उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया। हर इंसान को इथे यार फलान बुजुर्ग या फलान इंसान खुदा वली, असल में वो तो वली तो हम ये टर्म, वरना हर मोमिन असल में अल्लाह का वली है। प्रेत का मोमिन क्या वली, अल्लाह वलियुल लजीना आमन, हर ईमान वाला बंदा उसको अल्लाह की विलायत किसी न किसी दर्जे में, हाँ अब किसी को कम दर्जे में हासिल है, किसी को ज्यादा दर्जे में, और कोई तो इस विलायत के आला मकाम पर यजन फाइज होता है। और सारे को थदिस मकाम पर विलायत किस आसन कुम अंबिया अलैहिस्सलातु वसलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमान मोमिन कि अल्लाह आपके इन दुश्मनों के लिए काफी है, और कारसाज और यजन वली और मददगार, बहरहाल वो तो अल्लाह ही काफी है। रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि रब्बुल आलमीन बनिन सोन कारसाज और सोन दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला दीन कुरान पाक पर अमल करने तौफीक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।